Very good afternoon to all of you. Now I am going to take mock interview of Delhi District Court DSSB. ऑलरेडी डेट्स वगैरह भी आ चुके हैं, तो आप मॉक इंटरव्यू सुने, इससे बेनिफिट उठाएं. मेरा नंबर है 7503235358. Start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. First of all, briefly introduce yourself. Sir, my name is Kavita Ragnar Maheshwari. I am from Boisar, Maharashtra. I have completed my post-graduation in political science from IGNOU University, Indira Gandhi National Open University, sir. My father is a businessman, my mother is a homemaker, and in leisure time, I like doing organizing, sir. ओके, उनको ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम महाराष्ट्र से ही आ रही हो. जब उनको लगे कि दिल्ली में कैसे काम करोगी, तो मैंने बोलना सिखाया था कि मैंने टाइपिंग यहाँ से करी है, ये यहाँ से करा है, हाँ या नहीं. एक बार पॉज करने का वीडियो. तो मैंने समझा रखा है उसको कैसे बोलना है. ओके, यू आर फ्रॉम बोईसर, महाराष्ट्र. Yes. व्हाई बोईसर इज फेमस? Sir, Boisar is famous for MIDC, and nearby there is a place named Tarapur. There is a first power station, atomic power station in Tarapur. So it is famous for that. And recently there is a one port is going to be established ओके, there. यू केम फ्रॉम मुंबई. ओके, आप Yes. मुंबई से दिल्ली आए हो. इतनी दूर आपने कैसे सोचा कि आपने वहाँ से फॉर्म फिल करना है? वैसे तो मुझे पता है कि ये जे का फॉर्म कोई भी फिल कर सकता है, बट आप यहाँ इतनी दूर कैसे एडजस्ट करोगे और आपने यहाँ फॉर्म फिल करने का क्यों सोचा? Sir, actually, I was preparing for competitive examinations from like 3 years. I was going through this post in Delhi. So I came across that there are skills which I do understand well, and the skills which are required for this post I am comfortable with those. So I thought that I should fill this form, and as I was preparing for other examinations, so I came to Rohtak for preparation, and from there I traveled here. ओके, जस्ट ट्राई टू, इफ दे विल आस्क द क्वेश्चन इन इंग्लिश देन यू विल गिव द आंसर इन इंग्लिश. मगर वो हिंदी में पूछें, जैसे मैंने हिंदी में पूछा था तो हिंदी में जवाब देना है. Okay, sir. डिपेंड करता है पैनल कौन से लैंग्वेज में पूछ रहा है. ओके, इन विच ईयर यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? Sir, I completed my graduation in 2019. ओके, इन विच सब्जेक्ट? Sir, in commerce. इन कॉमर्स. आफ्टर दैट अप्रोक्सीमेटली 5 साल हो चुके हैं. अब तक आप क्या कर रहे थे? Sir, जब तक जॉब नहीं होने का क्या रीज़न है? Yes, sir. After my graduation, I started preparing for competitive examinations, जिसमें से बहुत सारे examinations मैंने clear भी किए हैं सर, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस HCM. बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया सर, एंड देन उसके बाद मैंने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन शुरू की. फॉर्चुनेटली आई एम तो हियर. कल को अगर आपका जॉब कहीं और हो जाता है, जो आपका पहला प्रायोरिटी था, तो आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जे जॉब छोड़ देंगी? नहीं सर, फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टन सर. अभी के लिए आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. मैं इसी चीज़ को करना चाहूँगी, एंड अगर इसी चीज़ में मैं करती हूँ एंड आई गेट द एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ऑल्सो आई विल try to take experience in this field only and take promotion in this field only, sir. Okay. What do you know about the Delhi District Court job profile? JJ job profile, sir. Junior judicial assistants job profile is as follows. They organize the records, books, and they assist to the judges. They are responsible for drafting notices, orders, warrants, etc., sir. Okay. Suppose you are a BCom student. Yes. And you are not moving towards the financial sector or regulatory bodies sector. So how your knowledge, education knowledge, indirectly help in this job profile? Sir, as I know कि I have studied about bookkeeping and accountancy. There we learn about that managing the things, time management, as well as organizing of the things. So that thing gonna help me in this sector also, sir. Other than that, sir, in college and academic time, I have learned lot of things like communication skill, interpersonal skills. So that thing is indirectly gonna help me in this profile also, sir. Okay. Tell me something about the difference between High Court and Supreme Court. मतलब hierarchy बतानी है, ठीक है? Okay, sir. Sir, Supreme Court is the apex court, and it's the topmost court. After that, there comes the High Court. Supreme Court article is from 124 to article 147, and High Court articles asked from 214 to 231, and then there is District Court, subordinate courts. It comes under the jurisdiction of High Court, sir. Okay. Yes. आपने सुना होगा कि अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है. Yes, sir. प्रेसिडेंट रूल कब लगाते हैं? सर, जब किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट वहाँ के
जो कार्य है उनको कंप्लीट करने फुलफिल करने में अनसक्सेसफुल होती है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगता है सर. इट कम्स अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन था वहाँ पे सीएम? सीएम वाज एन बीरेन सिंह. एन बीरेन सिंह जी. ओके. जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि अभी हरियाणा में कुछ समय पहले इलेक्शंस हुए थे, Yes, sir. दोबारा से सीएम कोई बना है हाँ, तो रिपीट नहीं हुए हैं, तो सीएम का और गवर्नर का क्या नाम है? हरियाणा में गवर्नर जो है वो बंधु दत्तात्रेय जी हैं और जो सीएम है वो नायब सिंह सैनी है. आपने अपनी टाइपिंग जैसा बताया, आपने रोहतक से ही करी है Yes, sir. टाइपिंग Yes, वगैरह. sir. ठीक है. आपके महाराष्ट्र का सीएम गवर्नर कौन है? सर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी हैं और गवर्नर जो है वहाँ के ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी क्यों न्यूज़ में है? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर देख लीजिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत दिन से न्यूज़ में है, आज के अखबार में भी है, एडिटोरियल के पेज में Yes, बहुत न्यूज़ में रहता है. डिलिमिटेशन क्या है? सर डिलिमिटेशन कम्स अंडर आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी जगह के एमएलए का जो विभाजन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन होता है सर. तो पॉपुलेशन जो है वो डिसाइड करता है कितने एमपी होंगे. और डिलिमिटेशन अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन है, ही इज़ अगेंस्ट द डिलिमिटेशन. ओके. अभी आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे. यस सर. तो दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में हैं, पहले भी वही थे, अब भी वही हैं. क्या नाम है उनका? सर उनका नाम ऑनरेबल विनय कुमार सक्सेना जी है. गुड. अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सरकार को कैसे हेल्प करता है और किस आर्टिकल में आता है? सर अटॉर्नी जनरल कम अंडर द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अपने करंट अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन जी हैं. अटॉर्नी जनरल इज द पर्सन जो कि लॉ लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, और जो मतलब ही इज ए गवर्नमेंट लॉयर. सरकार का वकील कहते हैं. यस. एंड सॉलिसिटर जनरल इज तुषार मेहता जी. आई डोंट रिमेम्बर द आर्टिकल सर. आई कांटेक्ट इधर उधर क्यों जा रहा है? क्या उधर कुछ रखा है क्या? नहीं सर. इधर ही रखना है. Yes. हॉबी क्या है? माय हॉबी इज ऑर्गेनाइजिंग सर. ऑर्गेनाइजिंग. उसके अलावा और कुछ? Sir, as I was preparing for competitive examination, I didn't get much time to pursue any hobby as such, so I don't have any other hobbies. ओके. आप मुझे बता दीजिए कि रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के जो 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी है वो बता दीजिए. Sir, actually my graduation got completed in 2019, so I didn't ये get तो much बिल्कुल time बीकॉम का there. बेसिक है बेटा. डेबिट द Golden rule- रिसीवर, हाँ, क्रेडिट sir. द गिवर. Yes, I was about to say this कि I know a bit but not the full. The debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out, and ठीक है, देख लीजिएगा. Yes. बैलेंस शीट अगर ये है तो बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी साइड के 1-2 पोस्टिंग्स बता दीजिए. sir, in asset side there are furnitures, cash in hand, cash at bank. In liability side there are bills payable and bills payable and ठीक है. हाँ. आपकी कीबोर्ड की स्पीड क्या है? टाइपिंग की sir, स्पीड? my typing speed is approx 55 plus. 55 प्लस है. ओके. और आपको एक्सेल सीट या पावर पॉइंट या कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज़ वगैरह पता है? Yes. ठीक है. आप मुझे बता दीजिए कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा एआई का लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं. Yes, sir. एआई के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? Sir, artificial intelligence, if I say, there are more pros and less cons. Reason being that as we are growing, our country is also developing. So the knowledge is very important. Sir, artificial intelligence help the person to save the time, money as well as the efforts, which can be used for other work, sir. ठीक है. And other than that, sir, artificial intelligence can give the information which a single person single-handedly cannot access, but artificial intelligence can. And as for cons, sir, artificial intelligence, many people in India specifically are not that technically intelligent. They don't understand the technicalities which AI need to have, like. So artificial intelligence in India can be a con, reason being that we are not adapted to it. We don't understand it much, or many of the people don't understand it much. ओके. लास्ट 1-2 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं. वुमेन एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? Sir, Mrs. Annapurna Devi. ओके. अभी मेरे ख्याल से 36 डेज या कुछ समय के लिए ही पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी.
कुछ समय के बाद, क्या नाम है उनका? I can't recall it. बीवी नागरत्नम, मैंने कितनी बार क्लास में बताया है। हाँ, BV. ठीक है, ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट्स को फीडबैक देता हूँ। ओके, मेरा नंबर ऑलरेडी सब जगह मेंशन है। जिनको मेल नहीं आया है घबराइए मत, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करे हैं, मैम को करे हैं और यूट्यूब पे भी करे हैं, तो मेल आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लग रहा होगा बट मेल आ जाएगा। बट फिलहाल अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग अभी तक डेट का ही वेट कर रहे थे, तो वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद।